Hello, students. I, Lokesh Seni, welcome you all once again to the Shankar IS Academy. So, here we are in our daily current affairs analysis. Right? Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Now, today's topics for the discussions would be in the first, we'll discuss about the splendor of the Hosala dynasty. In second topic, we are discussing about the price gouging, that how price gouging can inflate other things, right? And third topic, we'll discuss about the immigration laws, lives, and labor. And the fourth topic, we'll discuss about the recently India has that AI summit in Delhi only, right? And what are the key takeaways from this summit? And fifth point is the last in which we see the multiple newses which are important from the examination point of view, from the prelims point of view, sorry. Now, unearthing silent splendor of Hosala dynasty, okay, in the natural parts of Hassan, Mandya, Mysore in Karnataka. So this basically this Hosala dynasty was, if you see in today's modern day Karnataka, this dynasty have ruled uh, thrivingly in the medieval time, right? And it is known for its temples and especially for its soapstone style temples, right? These are the magnificent carving sculptures, designs of Hosala dynasty. Now, basically, the Hosala dynasty static facts are there. They were been there in from 10th century to till the 14th century, and the region was the southern Karnataka, that is Hassan, Mandya, and Mysore parts. That is the southern Karnataka in Hassan, Mandya, and Mysuru part, and the capital was Halabedu. First, it was a Dwara Samudra, and then later on, the capital named as Halabedu. Famous ruler was Vishnu Vardhana and Veeraballa II. Religions in this dynasty, under this dynasty, various religions were there. Vaishnavism was there, Saivism were there, and later on, Jainism was also there. Religious. So it shows that in Hosala dynasty, religious tolerism, religious tolerance was there, right? So in both in Hosala dynasty, Vaishnavism is there, Shaivism is there, and even Jainism is there. Architectural, I already told you that they were known for its soapstone chloritic cyst. Mostly they're built from this soapstone. They are star-shaped stellate platform Jagati, which is known as Jagati, and there are multiple shrines. If it is one shrine, this is Ekota. If it's two shrine, it's a Divikota, and it is three, it's Trikota. Extensive Trikota, extensive sculpture bands and elephants. They shows the symbol of strength. Horses symbolize the speed. Mythical creatures, Yalis and Ramayana and Mahabharata panels were there. So there extensively, some sculptures bands were used, as an architectural feature of the Hosala dynasty. Chinnekeshwar Temple, Bellur, Hosala, Hosaleshwara, Halabedu, Lakshmi Devi Temple in Doda Gadavali, Keshava Temple in Somanathpura, and these were inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 2023 as well. And there is a step well. This is the step well you have seen, right? This like structure in the step well, the Kalyani feature example, Hulikere Kalyani built below the ground level. Even this is ground level, so they are built below the ground level. Symmetrically descending steps, जैसे राजस्थान में आपने बावड़ियों देखी होंगी, उनका जो होता है वो सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं, उस तरह का लिंक्ड टू टेम्पल रिचुअल इकोलॉजी, और ये सिंबॉलिक कॉस्मोलॉजिकल एलिमेंट है. नक्षत्र एंड जॉडिक एसोसिएशंस, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम द्रविडियन रिजिडिटी टू द स्कल्पचर डायनेमिज्म. होसाला डायनेस्टी में आपको ट्रांजिशन दिखेगा द्रविडियन रिजिडिटी से लेके स्कल्पचरल डायनेमिज्म तक, मिनिचराइजेशन से लेकर हाइपर डिटेलिंग तक, एंड टेम्पल एज ए नैरेटिव टेक्स्ट, political legitimacy through the art, monumental architecture as a statecraft, assertion of regional identity against the Cholas and Western Chalukyas, और religious pluralism आपको देखा होगा आपने, Shaivism भी था, ठीक है, उसके बाद आपका Jainism भी था, everything was there, right? Shaivism भी था, और ये आपका Jainism भी था, right? And Vaishnavism भी था, everything. So now Jaini monument reflect the decentralized medieval polity. So it reflects that there was a decentralized medieval polity.
एज लैंड होल्डिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी लैंड होल्डिंग, जो जमीन जो थी वो मंदिरों के नीचे होती थी, कल्चरल हब्स, क्राफ्ट सेंटर्स, वाटर मैनेजमेंट नोड्स, कल्याणी, कंजर्वेशन एंगल थ्रेट्स हो गया, वेदरिंग ऑफ स्टोन, टूरिज्म प्रेशर होता था, अर्बन इंक्रोचमेंट नीड, साइंटिफिक कंजर्वेशन से हम इनको बचा सकते हैं, और हेरिटेज प्रोग्राम्स वी कैन रन. गॉट इट? नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दे आर द फीचर्स, और इसमें अलग अलग फीचर्स हैं. चोला, होसाला और विजयनगर किंगडम के बारे में, तीनों के बारे में अलग अलग बताया गया है कि कोर रीजन क्या था, मटेरियल कौन सा यूज हुआ इनके टाइम पे, टेम्पल प्लान क्या था, स्केल, ठीक है, गोपुरम, स्कल्पचर स्टाइल, पिलर्स, ये तीनों टाइम पीरियड्स को इन्होंने अलग अलग उसमें फैक्टर्स में डिवाइड कर रखा है. एंड वील सी दैट व्हाट वाज द चोला के टाइम पे क्या था, होसाला के टाइम पे क्या था, विजयनगर किंगडम के टाइम पे क्या था. ओके. ना चोला जो डायनेस्टी थी वो 19 से, सॉरी 9 से लेके 13 सेंचुरी तक थी. तमिलनाडु में मटेरियल यूज होता था ग्रेनाइट, स्ट्रिक्ट द्रविडियन और एक्सियल स्टाइल, मैसिव वर्टिकल एम्फोसिस, टॉल और पिरामिडिकल डोमिनेंट. जो टावर होता था वो टॉल होता था, पिरामिडिकल फॉर्म में होता था, और बहुत ही गोपुरम जो होते थे वो नॉट वेरी डोमिनेंट अर्ली फेज के अंदर, बोल्ड, पावरफुल, फ्यूर बट ग्रैंड. और पिलर्स थे सिंपल और हैवी पिलर्स थे, सिंपल और हैवी पिलर्स थे चोला डायनेस्टी में. औसाला मैंने आपको बताया साउदर्न कर्नाटका के अंदर था, 12 13 सेंचुरी के अंदर. बेसिकली सोपस्टोन, इसमें चोला डायनेस्टी के अंदर ग्रेनाइट यूज हुआ है, और होसाला डायनेस्टी के अंदर सोपस्टोन यूज हुआ है, दैट इज क्लोरिटिक सिस्ट. ये जो यहाँ थे स्ट्रिक्ट द्रविडियन एक्सेल, और यहाँ पे है स्टार शेप्ड स्टेलेट प्लेटफॉर्म्स. और यहाँ पे जो स्केल था दैट वाज मीडियम स्केल एंड हॉरिजॉन्टल, राइट, स्प्रेड, शॉर्टर एंड ऑर्नेट. फिर गोपुरम मिनिमल होते थे, हाई इंट्रिकेट और मिनिएचर डिटेलिंग होती थी, एक एक छोटी छोटी चीज पे नकाशी करके जो पत्थर बनाए जाते थे वो बहुत छोटा छोटा नकाशी करके बनाए जाते थे. और लेथ एंड टर्न्ड पॉलिश पिलर होते थे. विजयनगर किंगडम 14 से लेके 17 सेंचुरी तक, कर्नाटका, हम्पी, ग्रेनाइट यूज होता था. इसमें भी लार्ज रेक्टेंगुलर जो कॉम्प्लेक्सेस होते थे, वेरी लार्ज टेम्पल होते थे. और इसके अंदर जो पिलर भी थे वो कंपोजिट पिलर थे, रेयरिंग हॉर्स यलीज, पिलर्ड हॉल्ड विद यली कॉलम्स. ठीक है, एक्सट्रीमली टॉल एंड एलोबरेट गोपुरम्स होते थे इसमें. तो तीनों डायनेस्टीज का जो है अपना अपना कौन कौन से एरियाज में क्या क्या चीज होती थी वो सारा एक तरीके से सब कुछ बताया हुआ है इसमें. ठीक है. इसके टाइम पे सिर्फ शैवाज थे वो डोमिनेंट थे. यहाँ पे शैवाज, वैष्णव और जैन तीनों थे, और यहाँ पे वैष्णव डोमिनेंट थे. तो मतलब चोलाज में शैविज्म थे, और होसाला में शैव, वैष्णव और जैन तीनों थे. और अगेन जो आपका विजयनगर किंगडम है उसमें वैष्णवास थे वो डोमिनेंट थे. इसमें रॉयल पावर स्टेटमेंट होता था. ठीक है, टेम्पल एज है, इसमें स्कल्पचरल मास्टरपीस के जैसे उसको देखा जाता था. और यहाँ पे इसमें एज अ रिचुअल एंड फेस्टिवल सेंटर के रूप में उसको देखा जाता था. वाटर स्ट्रक्चर में दीज आर द स्टेपवेल, मतलब कल्याणी जो मैंने आपको बताया, आपने आपने राजस्थान के अंदर या न्यूज में या कभी पिक्चर में देखी होगी, जैसे बावड़ी जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बहुत सारी सीढ़ियां नीचे उतर के आपको जाना पड़ता था, और नीचे छोटा सा एक पॉन्ड होता था, उसमें बहुत सारी सीढ़ियां उतर के नीचे तक पहुंचना होता था. ठीक है, स्केर्ड इन सिंबल्स ऑफ द होसाला. ठीक है, एंड दिस आर द पुष्करनीज and Humpy group of monuments. With reference to Hosala temple architecture, consider the following statement. They were primarily built using granite. Hosala वाले primarily granite से नहीं बने. Granite से कौन बने हैं? चोलाज या फिर विजयनगर. होसालाज तो बने हैं किससे? सॉप स्टोन से. तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, तो बी गलत और डी गलत. सेकंड क्या है? स्टेलेट स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म आर की फीचर्स, करेक्ट है. द टेम्पल्स डिस्प्ले बोथ शैविज्म वैष्णविज्म थीम्स, यहाँ ये भी करेक्ट है. इवन जैनिज्म भी था, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. तो सेकंड एंड थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर. तो सेकंड एंड थर्ड, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टॉपिक, ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? A is the correct answer of this. Now again we'll discuss about the second topic, price gouging is real, doing nothing is not the answer. ठीक है, Mamdani should target the cost of goods where competition is the best. ये कहीं एक आर्टिकल आया है उससे इसको लिया गया है. Now what is price gouging? We have to understand this. Price gouging refers to excessive increase. जब बहुत ज्यादा excessively किसी चीज के अंदर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, खास करके असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में, जैसे
और जब कभी नेचुरल डिजास्टर आए, मान लो कोई फ्लड आ जाए, कभी कोई जैसे कोरोना पेंडेमिक आ गया था, ऐसे टाइम पे जब एसेंशियल पे जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं उनके प्राइस सर्ज हो जाएं गुड्स, ठीक है। सो तो कंज्यूमर्स हैव लिटिल अल्टरनेटिव्स, और कंज्यूमर्स होते हैं उनको पास बहुत ही लिटिल अल्टरनेटिव रहता है। फिर उसके बाद हो गया एग्जांपल वाटर बॉटल्स ड्यूरिंग फ्लड, जैसे मान लो वाटर बॉटल है वो फ्लड के टाइम पे महंगी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगा हो जाए कोविड 19 के टाइम पे, और एयरलाइन टिकट महंगी हो जाए क्राइसिस और इवैक्यूएशन जब खाली करना हो कहीं से, तो उसको हम बोलेंगे प्राइस गोजिंग। मतलब एक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है जब भी प्राइस में, असेंशियल गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में, जब एसेंशियली मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम प्राइस गॉजिंग कहते हैं। मार्केट थ्योरी है डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस। मान लो डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तब भी इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि डिमांड तो बहुत है और सप्लाई बहुत कम है, तो मनमर्जी रेट लेंगे ये लोग। मार्केट पावर इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मान लो मार्केट पावर नहीं है और कोई कंपटीशन नहीं है सामने वाला, तब भी वो महंगा दे सकता है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, लीगल एंगल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन इंडिया प्राइस रेगुलेशन कैन हैपन थ्रू, इंडिया के अंदर तो हम प्राइस को रेगुलेट कर सकते हैं, तीन चार एक्ट हैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। अगर कोई एक्ट को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया तो उसको एक लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं बढ़ा सकते। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 हो गया, लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया 2002, स्टेट लेवल प्राइस कंट्रोल नोटिफिकेशंस ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। जो स्टेट लेवल प्राइस कंट्रोल नोटिफिकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसीज गवर्नमेंट कैन इम्पोज स्टॉक लिमिट्स। उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक लिमिट की लोग भर भर के चीजें ना रख ले, स्टॉक लिमिट के ऊपर रोक लगा सकती है, प्राइस कैप लगा सकती है कि भाई इससे ज्यादा आप ऊपर प्राइस नहीं रख सकते, रेगुलेट कर सकती है होर्डिंग को कि कोई भी सामान इकट्ठा नहीं करके रखेगा और कल को मान लो सब जगह से एक जगह इकट्ठा करके रख ले और बाद में फिर महंगे दामों पे बेचे। कंडक्ट रेड्स कंडक्ट करते हैं गवर्नमेंट, ऐसे टाइम पे यही करती है। गॉट माई पॉइंट। प्राइस गोजिंग इन्फ्लेशन, जैसे प्राइस गोजिंग का मतलब होता है सडन स्पाइक इन द प्राइसेस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स ऑफन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, जब भी कोई डिजास्टर होता है इस तरह से, माइक्रो लेवल फिनोमिना है ये, ड्राइवन बाय द लोकल स्कैरसिटी और पैनिक। ठीक है, यूपीएससी ट्रैप, एवरी प्राइस इंक्रीज इज नॉट ए इन्फ्लेशन। गॉट माई पॉइंट। इन्फ्लेशन यहाँ पे सस्टेन्ड राइज इन अ जर्नल प्राइस लेवल, मतलब लगातार कंटिन्यूअस जो है वो एक चीज का प्राइस राइज हो जाए एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। ऑफन ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन बी स्ट्रक्चर और मैक्रो इकोनॉमिक, ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी हो सकता है, मैक्रो लेवल फिनोमिना होता है वो माइक्रो होता है, ड्रिवन बाय द डिमांड्स एंड सप्लाई मिसमैच, मनी सप्लाई कॉस्ट शॉक्स। ये जो होता है इन्फ्लेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो डिमांड सप्लाई मिसमैच, मनी सप्लाई, कॉस्ट शॉक, इन सब चीजों की वजह से वो हो सकता है। अब हिंदुस्तान में टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, रेलेवेंट है यहाँ पे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मान लो मनी बहुत ज्यादा है लोगों के पास और गुड्स बहुत कम है, तो एग्जांपल फेस्टिवल डिमांड जो है वो स्पाइक कर देती है, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन सामान कम है अभी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, मान लो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे ही प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्रीज हो जाएगा तो ऑयल प्राइस शॉक हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट राइज हो जाएगी, है ना। अगर किसी के प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ गया तो वो ट्रांसपोर्ट बढ़ा देगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ा देगा तो हर चीज पे महंगा मिलने लग जाएगा। तो जैसे ही तेल महंगा होता है हिंदुस्तान में महंगा हो जाता है, अगर पेट्रोल महंगा होता गया कंटिन्यू कंटिन्यू तो ऑब्वियसली बाकी चीजें भी महंगी हो जाती है क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट से ही तो इधर उधर पहुंचता है। तो जब भी पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाए एक लिमिट से ज्यादा, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी पे, या पड़ता ही है। ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइस राइज, डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज। जैसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी होता है, अगर ग्लोबली किसी कॉमोडिटी की प्राइस राइज कर रही है तो डोमेस्टिकली प्राइस इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई द शॉक इन्फ्लेशन, वार हो गया, पेंडेमिक हो गया, क्लाइमेट इवेंट टू रिड्यूस सप्लाई, प्राइस गोजिंग ऑफन हैपेंस ड्यूरिंग द सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर आप वॉर के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपकी सप्लाई पूरी नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तब भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। राइट, ये भी हमें ध्यान देना है। और कुछ कुछ मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई लेके आती है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ये आरबीआई का ही काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक करती है रेपो रेट लगा के कि बैंक को जो है बैंक के किस रेट पे जो है वो कर्जा देंगी। रिवर्स रेपो रेट जो है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
जिस किस रेट से पैसा देता है बैंकों को, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, कि बैंक का जैसे 4% होती थी पहले, तो सीआरआर की कितना बैंक्स जो है टोटल एसेट का कितना परसेंट कैश रिजर्व करके रख सकते हैं, 4%। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ओएमओज होते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या करता है, कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। नंबर 1 इज रेपो रेट, नंबर 2 इज रिवर्स रेपो रेट, नंबर 3 इज कैश रिजर्व रेशियो, नंबर 4 इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। फिर उसके बाद, बट हेयर इज द की इनसाइट, मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट फिक्स द लोकलाइज्ड प्राइस। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फिक्स नहीं कर सकती। अगर कहीं लोकली प्राइस राइज हो जाए, अचानक से सूट अप हो जाए, अगर ओनियन प्राइस स्पाइक ड्यू टू होर्डिंग, मान लो कोई एक जगह प्याज सारे इकट्ठे कर ले, कोई बड़ा डीलर है उसने सब जगह से प्याज इकट्ठे कर लिए, अब मार्केट में कहीं प्याज नहीं है और अब वो प्राइस बढ़ा देगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। रेजिंग, फिर उसके लिए तो फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाना पड़ेगा। रेजिंग रेपो रेट वॉन्ट इंक्रीज द ओनियन सप्लाई। और अगर आप रेपो रेट का, कोई ओनियन सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, इट मे इवन स्लो द इकोनॉमिकली अननेसेसरीली। दिस इज कॉल्ड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड में इसको कहेंगे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, बेस्ट हैंडल्ड थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फिस्कल मेजर, नॉट मॉनेटरी टाइटनिंग। आप जो है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को तो हैंडल कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिवली या फिस्कल मेजर से लेके, ये मॉनेटरी टाइटनिंग से या मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, वहां से ठीक नहीं होगा ये। फिस्कल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल टू कंट्रोल द प्राइस गोजिंग, आप रिलीज कर सकते हो बफर स्टॉक को, इम्पोज कर सकते हो स्टॉक की लिमिट को, होल्डिंग रेट्स डाल सकते हो कि कोई होल्ड नहीं कर रहा हो, ठीक है। एक्सपोर्ट बैन कर सकते हो, प्राइस कैप्स लगा सकते हो, और डायरेक्ट बेनिफिशियरी दे सकते हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी दे सकते हो आप, राइट। डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के अकाउंट में पैसा लेके डाल सकते हो, सब्सिडीज दे सकते हो। तो ये सारे टूल्स को अपन यूज करके जो है वो हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, गॉजिंग को। एग्जांपल, ओनियन क्राइसिस, गवर्नमेंट बैन एक्सपोर्ट्स प्लस रेड होर्डर्स, जो जो होर्डिंग कर रहा है। पॉलिसी डिबेट, शुड गवर्नमेंट इंटरवीन, यस आर्ग्यूमेंट, लेट मार्केट वर्क। हाई प्राइस, जितनी ज्यादा हाई प्राइस होगी इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई, अट्रैक्ट द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करेगा, एफिशिएंट एलोकेशन। आर्ग्यूमेंट 2 क्या कहता है, स्टेट मस्ट इंटरवीन, डिस्ट्रेस एक्सप्लॉइटेशन, मार्केट फेलियर ड्यूरिंग क्राइसिस, इक्विटी ओवर एफिशिएंसी। With reference to price gouging in India, consider the following statements हो गया. The Competition Commission of India can act against the exploitative price only when there is abuse of dominant position. The Essential Commodity Act allow the government to regulate the production and distribution of certain goods during emergency. Yes. Price gouging explicitly defined as a criminal offense under the Indian Penal Code. It's not a criminal offense. So third would be wrong. Then the answer would be B only. Okay. If third would be wrong, then this is wrong, this is wrong, this is on. Only B is left. Even we don't know the two statements, you can correct it, because even you know 100% that this statement is 200% not correct, then also by just applying the knowledge you can correct this question. Okay, it means the Competition Commission of India, they can act against the exploitative pricing only when there is a use of dominant position, and the Essential Commodities Act allows the government to regulate production and distribution of certain goods during the emergencies. Now immigration laws हो गया, now immigration laws हो गया, got my point. Laws, lives and labor. Core issue in the article, that debate revolve around the enforcement of the immigration law. जो immigration law है उसको कैसे enforce करें, humanitarian concern, asylum किसको कहते हैं, refugee किसको कहते हैं, जब भी कोई शरणार्थी आता है, ठीक है, asylum उसको देते हैं जब भी कोई प्रताड़ित आता है धर्म के नाम पे या किसी जाति के भेदभाव के आधार पे, कब जब भी कोई पनाह मांगता है या जब भी कोई रहने के लिए जगह मांगता है, तो उसको हम वी कैन पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ असाइलम, right? Labor market needs, federal versus state authority, deportation versus integration. It highlights the tension between the rule of law, human right and economic demand for labor. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अभी अमेरिका वालों ने बहुत सारे भारतीयों को, जो पंजाब क्षेत्र के थे, हरियाणा के थे, राजस्थान के थे, अलग अलग जगह के इंडिया में जहीं भी थे, तो उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को डिपोर्ट किया था, जो वहाँ पे मतलब लीगली नहीं गए थे और वहाँ पे रह रहे थे, तो उनको अमेरिका की सरकार ने जो है वो डिपोर्ट कर दिया था। तो it highlights the tension between the rule of law, human right, economic demand for labor, and this triangle is central to any immigration debate, including the India's.
ये जो ट्राइंगल है वो दैट इज सेंट्रल टू इमिग्रेशन डिबेट इंक्लूडिंग इंडिया, बिकॉज इंडिया के लोग कितने ज्यादा बाहर है आपको अंदाजा है, इंडिया में लगभग कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग. 30 million we have today. I guess around lump sum 30 to 32 million people in India today as as a diaspora. So that's why it's very important. Illegal immigrant, a person entering without authorization over staying visa. आप जब वीजा में जितना टाइम लिमिट है उससे ज्यादा अगर आप बिना बताए रह रहे हो विदाउट अथॉरिटी, तो जिसको कहेंगे इलीगल इमिग्रेंट. फिर रिफ्यूजी क्या होता है? डिफाइंड अंडर सेक्शन 951 ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन, वेल फाउंडेड फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन. जब आप प्रोसिक्यूशन से आपको डर लग रहा हो, ठीक है, आपका धर्म के नाम पे या किसी भी चीज पे, तब आप रिफ्यूजी बन सकते हो. असाइलम सीकर, पर्सन सीकिंग रिफ्यूजी स्टेटस. असाइलम सीकर वो होता है जो बोलता है कि मुझे एज ए रिफ्यूजी मान के रख लो भैया एटलीस्ट, क्योंकि रिफ्यूजी में तो क्या होता है कि आपको परसिक्यूटेड होते हो आप किसी धर्म के नाम पे या किसी भी चीज के नाम से, या उस देश के अंदर मान लो सिविल वॉर जैसी स्थिति हो गई है, तो यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, यू वांटेड टू प्रोटेक्ट योर बेबी, wanted to protect your wife, then you can seek the asylum seeker. Got my point? Person seeking refugee status but not yet recognized. मतलब asylum seeker is a condition when people want to become refugee but he is not refugee but he wanted the status of refugee. That is known as the asylum seeker, that he wanted to seek the status of refugee. And what is refugee? Under 1951 refugee convention, well founded fear of persecution. ठीक है. Undocumented worker, worker without legal immigration status. Undocumented worker means if a worker is without legal इमिग्रेशन स्टेटस, जो लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है उसके पास. फिर अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इमिग्रेशन को. सम स्टेट रेजिस्ट इन्फोर्समेंट, सेंचुरी साइट्स डिबेट. ठीक है. इन इंडिया सिटीजनशिप गवर्न द सिटीजनशिप एक्ट 1955. इंडिया के अंदर तो सिटीजनशिप जो एक्ट 1955 का, और फॉरेनर एक्ट 1940, फॉरेनर एक्ट 1946 है, पासपोर्ट एक्ट 1967 है. जो फॉरेनर एक्ट है 1946 और पासपोर्ट एक्ट है 1967, एनआरसी सीए डिबेट्स हैं उसमें सिटीजनशिप की बातें हैं. इंपॉर्टेंट लिख है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट रेगुलेट करती है सिटीजनशिप से रिलेटेड. जैसे हमारे इंडिया में सिटीजन लेने का भी बहुत सारे तरीके हैं. आप कैसे, बाय रजिस्ट्रेशन हो, बाय बर्थ हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो. और सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के भी बहुत तरीके हैं. सिटीजनशिप लॉस के भी बहुत तरीके हैं. आप रिनंशिएट कर दो, ठीक है, आप हजार मतलब तीन चार तरह की चीजें हैं. गॉट माई पॉइंट? सिटीजनशिप लेने का भी एक वे है इंडिया के अंदर, एक प्रोसेस है. और सिटीजनशिप अगर आप अपनी देना चाहते हैं, अपनी छोड़ना चाहते हैं, तो उसका भी एक पर्टिकुलर वे है इंडिया के अंदर. गॉट माई पॉइंट? एंट्री 17 यूनियन लिस्ट सिटीजनशिप नेचुरल. ठीक है. फिर लेबर मार्केट डायमेंशन. देखो, सप्लाई लो वेज लेबर, फिल डेमोग्राफिक गैप, एजिंग पॉपुलेशन, क्रिटिक आर्ग्यू है, डिप्रेस वेजेस हैं. तो लेबर मार्केट डायमेंशन अभी बहुत बुरा हाल है. बूस्ट इकोनॉमिक थ्योरी लिंक, वेज कंपटीशन इन लो स्किल सेक्टर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो गया, एक्सपेंड इकोनॉमिक बेस, बूस्ट कंज्यूमशन, एंटरप्रेन्योर इंक्रीज, आईएमएफ स्टडीज हाउ इमिग्रेशन मॉडेस्टी बूस्ट जीडीपी. इंडिया स्पेसिफिक रेलेंस, इंडिया फेसेस रोहिंग्या इशू. इंडिया में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्या के रह रहे हैं, बांग्लादेशी इमिग्रेंट रह रहे हैं, श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज रह रहे हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजीज तो यहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं आपके, राइट. यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में ही है आपका ये मजनू का टीला. वहाँ पे बहुत सारे तिब्बतियन रिफ्यूजीज आज भी इंडिया में रह रहे हैं. ठीक है. रोहिंग्या इशू, बांग्लादेशी माइग्रेशन, श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज. बट इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन. हम लोग जो है, हमने 1951 का जो वो रिफ्यूजी कन्वेंशन है वो साइन नहीं कर रखा है. इंडिया फॉलोज केस बाय केस ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच. हम ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच केस बाय केस पे हम डिपेंड करते हैं. फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन. ठीक है. नहीं तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा. वेरी गुड. फिर हो गया सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्नड अंडर द यूनियन लिस्ट. 100% ट्रू. फॉरेनर एक्ट 1946 empower the government to regulate the deportation. I think second and third would be correct answer. Then A can be the best answer. So A is the best answer. ठीक है. And the next is AI submit and key takeaways. What are the key takes away from the AI submit? So this is little blur. Otherwise, I would have taken this snapshot. This what you call, यहीं से बताता मैं. ठीक है. प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेबल हो गया, इवेंट हो गया, एआई
इम्पैक्ट सबमिट हुई है, कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर, फरवरी 2026 के अंदर। 88 कंट्रीज इसके अंदर आए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डिक्लेरेशन हुआ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एएनआई, नेचर ऑफ कमिटमेंट, वॉलेंटियरी और नॉन बाइंडिंग। ये हमें याद रखना है, जो एआई सबमिट के अंदर जो हमारा कमिटमेंट्स हुआ है, दे आर नॉन बाइंडिंग। मतलब वो जरूरी नहीं है लागू होंगे, वॉलेंटरी है, मानो तो मानो, इट्स फाइन, नहीं मानो तो भी कोई बात नहीं। मेजर इनिशिएटिव है ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स का। ठीक है, फिर इंडिया इंडिया का मॉडल है सर्वम एआई मल्टी बिलियन पैरामीटर, जो एलएलएम्स हैं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई, सेफ ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन इनोवेशन हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट टू $25 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। 10 लाख करोड़ बाय रिलायंस, सिमिलर बाय अडानी। 10 लाख करोड़ रिलायंस ने किया है और 10 लाख करोड़ ही अंबानी ने किया है। अंबानी ने और अडानी ने, दोनों ने 10-10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। इंटरनेशनल लिंकेजेस है, इंडिया ज्वाइंट यूएस लेड पार्टनरशिप सिलिकॉन। इंडिया ने यूएस लेड पार्टनरशिप ऑफ सिलिकॉन ज्वाइन किया। फिर ट्रस्टेड एआई कॉमन्स, अभी तो आपने देखो इंडिया की बड़ी बेइज्जती भी हुई इसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ की एक XYZ यूनिवर्सिटी ने कुछ नकली बना के भेजा, है ना, डॉग वगैरह, काफी न्यूज में भी था। तो बेचारी प्रोफेसर को झेलना पड़ा, उसकी क्या गलती, जो उसको बताया वो आगे बोल दिया उसने, राइट। व्हाट डज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से? कोर पिलर्स, डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई है, सेफ सिक्योर ट्रस्टवर्दी है, कि भैया एआई जो है वो सेफ है, सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी है। वो कोर वैल्यू है दिल्ली डिक्लेरेशन के, कि भाई दिल्ली जो चाहता है वो चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ हो, सिक्योर हो, ट्रस्टवर्दी हो। ठीक है, इंक्लूजन हो ग्लोबल साउथ लैंग्वेजेस का, एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड ऑल्सो देयर, रेजिलेंट एंड एफिशिएंट एआई सिस्टम भी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और इंटरनेशनल कॉपरेशन प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। ठीक है। important nuance in unlike the यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी हैवी अप्रोच, इनोवेशन की हैवी अप्रोच चाहिए। ठीक है, इंडिया में देखो अभी तो एआई, हम सिर्फ नाम सुना है एआई का, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे एआई पे काम चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ काम हुआ, लेकिन वी हैव टू लर्न अ लॉट, लाइक जितना अमेरिका और यूरोप आगे है एआई में, हम लोग चला नहीं पाते हैं उतना, ना हम लोग को इतना आता है, ना हमारे यहाँ उतना चीजें इंटीग्रेटेड हुई हैं अभी। और ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है। एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, आपको मैंने बताया 10 लाख करोड़ का डोमेस्टिक जो कंट्री जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। अडानी ग्रुप भी ये कर रहा है। गूगल $15 बिलियन एग्जिस्टिंग लगा रखे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, ओपन एआई 100 मेगावाट डाटा सेंटर लीज इन इंडिया हो गया, 100 मेगावाट डाटा सेंटर इन इंडिया। टाटा ग्रुप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्लस पार्टनरशिप ले आओ। और यूटा डाटा सर्विस $2 बिलियन जीपीयू इंफ्रा बिल्ड। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुए हैं किसके अंदर? आपके एआई सबमिट दिल्ली के अंदर। और इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारी डिपेंडेंस यूएस और चाइना के ऊपर। इससे हम हमारी जो डिपेंडेंस है, क्योंकि आज देखो दुनिया भर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर अमेरिका से ही बन रहे हैं, चाइना से ही बन रहे हैं। इवन अमेरिका के जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी चाइना से अपने प्रोडक्ट्स को असेंबल करवाती हैं। आप समझ रहे हो मैं किसकी, एप्पल वगैरह की बात कर रहा हूँ। लिंक विद सेमीकंडक्टर मिशन, अगर उसी को हम लिंक कर दें सेमीकंडक्टर मिशन से, अगर इसी को हम लिंक कर दें सेमीकंडक्टर मिशन से, डिजिटल इंडिया से और क्रिटिकल टेक जियोपॉलिटिक्स से, देन इट कैन लिंक। एआई इंफ्रा इज इक्वल्स टू न्यू ऑयल। सो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना ज्यादा हम पैसा लगाएंगे वो नया, दैट्स अ न्यू ऑयल एक्चुअली। आज के टाइम पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ न्यू ऑयल। कंट्रोल ले सकते हैं हम जीपीयूज के ऊपर, डाटा सेंटर्स के ऊपर, एंड एलएम ट्रेनिंग कैपेसिटी के अंदर। और इंडिया जो है, आज आपको पता है इंडिया इज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अगर इंडिया वाले इस अच्छा इन्वेस्टमेंट करें तो इंडिया के लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है, बाय ओपन सोर्स ऑफ एलएलएम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है। एआई को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर के अंदर, मीडिया के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हर जगह अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खास करके एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में हम इंटीग्रेट कर दें तो लार्जली बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप एआई को देखो, ऑटोमेटेड आजकल मशीन्स आ रही हैं, सब कुछ कोडिंग वोडिंग सब पहले से होके आता है। एआई एज अ मल्टीपल फॉर प्रोडक्टिविटी प्लस जीडीपी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मल्टीप्लाई कर देगा हमारी प्रोडक्टिविटी को भी, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी मल्टीप्लाई कर देगा, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी मल्टीप्लाई कर देगा, और हमारे एक्सपोर्ट्स को भी डबल कर देगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट विल नॉट ओनली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी जीडीपी, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स। टाई दिस टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार, ओएनडीसी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाना पड़ेगा
दैट इज ऑफ यूपीआई, आधार कार्ड एंड ओएनडीसी। ठीक है। अब इसके अंदर जब कोई अच्छी चीज आती है तो उसके साथ कुछ कंसर्न्स भी आते हैं। जैसे कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था, अभी भी डर है कि डाटा प्राइवेसी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ये एआई के आने से। एल्गोरिथम बायसनेस, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूमशन ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कंज्यूम हो गई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है। ये खास करके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, डाटा प्राइवेसी हो चाहे एल्गोरिथम की बायसनेस हो, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो। ये मेंस का प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, 15 मार्क का, 250 वर्ड। एआई गवर्नेंस मस्ट बैलेंस इनोवेशन, एआई को बैलेंस करना पड़ेगा इनोवेशन को, इंक्लूजन एंड सिक्योरिटी। डिस्कस इन द रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट, ये डिस्कस करना पड़ेगा हमें रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर। फिर हो गया नाइजीरियन माइन ट्रेजिडी, 37 माइनर्स वर किल्ड इन 26 वर हॉस्पिटलाइज आफ्टर टॉक्सिक गैस। नाइजीरिया के अंदर एक माइन ट्रेजिडी हो गई, वहां पे 37 लोग मर गए। ठीक है, जिंक माइन थी नॉर्थ सेंट्रल नाइजीरिया के अंदर। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से पता चला है कि सडन डिस्चार्ज हो गया लेड ऑक्साइड का, एसोसिएटेड गैस थी उसकी सल्फर, और लीड ऑक्साइड की जो एसोसिएटेड गैस होती है सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। पुअर वेंटिलेशन लाइक वर्सनड द बिल्डिंग अंडरग्राउंड, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वेंटिलेशन भी पुअर था, और तो इस वजह से वर्स बिल्डअप अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड बिल्डअप हो रखा था। इसलिए एक टॉक्सिक गैस की वजह से माइनिंग के अंदर काफी लोग मर गए, 37 लोग, और 26 लोग घायल है अभी भी। फिर मोबाइल, द बीडी पुस्तका हिडी हिडी कैंपेन, कर्नाटका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन किया है इन्होंने वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर के साथ, लाइब्रेरी, हेल्थ केयर एंड पुलिस डिपार्टमेंट। कैंपेन स्लोगन, पुट डाउन योर मोबाइल एंड पिक अप अ बुक। अपना मोबाइल, पुट डाउन योर मोबाइल एंड पिक अप अ बुक। ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज करना है स्कूल के बच्चों को कि रिड्यूस करें स्क्रीन टाइम को, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो यूज कर रहे हैं। हैबिटेट ऑफ रीडिंग बुक्स हो गया, ताकि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए सके और हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स उसके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा, if they're watching Instagram, they're watching it for 2 hours, they're watching Facebook, they're watching it for 2 hours. So at end of the day, we have to encourage them that they have to reduce their screen time. बेलग्राम्स इंडिया फर्स्ट नेट जीरो पंचायत है। बेलाग्राम इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, बेलाग्राम इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, विदर्भ महाराष्ट्र एट मुंबई क्लाइमेट वीक हो गया। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 इट्स पाइनर क्लाइमेट एक्शन की इनिशिएटिव्स है। ठीक है, प्लांट 90,000 प्लस ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग एंड फेस्टिवल हो गया। ट्रांजिशन फ्रॉम स्मोकी चूल्हास टू एलपीजी, इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स इन होम्स, आंगनवाड़ी पंचायत ऑफिसेज में हमने प्रमोट किया वेस्ट सेग्रीगेशन को अलग अलग, जैसे ब्लू ब्लू का डस्टबिन आता है और ग्रीन डस्टबिन आता है। ठीक है, अलग अलग जो कचरा भी है सेग्रीगेट करोगे। तो बेलाग्राम इंडिया का पहला नेट जीरो पंचायत बना है, और ये कहाँ पे है, विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विच ऑफ द, कहाँ पे जो है वो पहला नेट जीरो पंचायत मिली, इंडिया फर्स्ट नेट जीरो पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी मिला है फॉर पायनियरिंग क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि इन्होंने 90,000 ट्रीज, आप अंदाजा लगाओ, ड्यूरिंग द वेडिंग्स एंड फेस्टिवल, जब भी कोई शादी होती है कोई पेड़ लगा देता है, कोई त्योहार आता है पेड़ लगा देता है। और स्मोकी चूल्हा से एलपीजी ले आए, सोलर पैनल लगा लिया पूरे गांव के अंदर, आंगनबाड़ी में, पंचायत ऑफिस में। और वेस्ट सेग्रीगेशन एट डोर स्टेप, एलिमिनेटेड द सिंगल यूज प्लास्टिक, एडवोकेटेड वेस्ट वेल्थ प्रैक्टिस। और दिस प्रैक्टिस हैज, इसको कह सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ प्रैक्टिस। फिर मोबाइल बीडी पुस्तका हिडी कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज प्राइमरीली इंटेंटेड। अब देखो, बेलाग्राम, ये वाला बेलाग्राम था, ये मोबाइल बीडी। ठीक है, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, रिड्यूस द एक्सेसिव मोबाइल फोन यूज एंड प्रमोट रीडिंग हैबिटेट अमंग स्कूल चिल्ड्रन, प्रोवाइड फ्री मोबाइल फोन, नहीं बैन। हाँ, दिस बी वाज दैट। ठीक, मुझे एक्चुअली कंफ्यूज हुआ कि ये जो मोबाइल बीडी पुस्तका है वो कैंपेन जो है वो कर्नाटका में कैसे, यहाँ तो महाराष्ट्र होना चाहिए, वो लिटिल कंफ्यूज। महाराष्ट्र में तो वो प्राइस वाला अवार्ड, जो अवार्ड वाला जो था वो था वहां पे। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। This was all about today. Please like, comment, and share. If you have any doubt, just please comment in the comment section below. We're happy to help you. Thank you so much. Keep watching Shankar IAS.